Hello, sir. We are glad to have you back. In the last interview, we talked about business skills for health professionals. In this interview, we are going to talk about International Medical Board for Business Skills from none other than Dr. Arvinder Singh. So, sir, can you please tell us what is International Medical Board? Actually, International Medical Board, as the name specifies, that it is international. Obviously, the vision and mission is global. It's medical, so it is targeting to the healthcare professionals. So it includes doctors, clinical, paraclinicals, then other healthcare professionals like pharmaceutical industry, anybody into the research of the medicines, anybody who is supplying or receiving something, mean to say vendors of the healthcare industry. And it is a board. When it is a board, it is not the one person company. It is like accumulation of all the wisdom, all the leaders at one place. And this is the International Medical Board for Business Skills. So business skills means how they can be smart enough to deal into this competitive era. Okay, so I would like to talk about business skills. Why do you think for a healthcare professional, business skill is also important? Business skill is something because at end of the day we are into business, right? Because everybody has the family, everybody has the responsibilities, and everybody has to survive in this world. So how one can survive without business skills? So business skills are something which are the part and parcel of any venture. And I have gone through the book, the Goldratt's book, The Goal. So they say that why the companies exist. So the companies exist for profit. Even NGOs have to have funds somehow or other from the persons who are making profit. Okay. So even the non-profit organization have to have some funds to play. So business skills are very much needed, and business skills are not only to earn money, it is to add value into the patient's management, into the healthcare segment, because business skill means also communication skills. So how you are communicating to your patient is also very important, because it will play a lot of role in healing. So business skill is, in my opinion, is the most important thing which a healthcare professional must possess along with the technical skills. Okay, so you are saying कि business skills भी होनी चाहिए medical skills के साथ और technical skills के साथ, right? So there must be some unique challenges that these healthcare professionals face, like implementing these business skills to their practices. Implementation is the second stage. First stage is whether they are aware of those skills, whether they know those skills, because as soon as a doctor passes and get into the real world, there are approximately 40-50 laws which are applicable to him knowingly or unknowingly. राजस्थान मेडिकल काउंसिल आ जाएगा, उसका जो स्टेट काउंसिल है वो आ जाएगा, नेशनल मेडिकल काउंसिल आ जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ जाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट आ जाएगा, मेडिकल रजिस्टर आ जाएगा, प्लेथोराज ऑफ लॉज ना, बहुत सारे हमारे जो हम पेशेंट को व्हेन वी आर ट्रीटिंग लॉट ऑफ IPCs, Indian Penal Code, we are covered into that. So awareness of the law is one of the business skill, because when we read business skill, it is not only how to make money, it is about how to protect your practice also. So it is imparting the medical law, then you earn some money. When you are earning some money, how to manage that money. So financial skills, financial management is also very important. Suppose as a doctor, if I earn good money and I am unable to manage it, so obviously I will be a poor doctor than the person who is managing his finances well. तो अगर मेरे पास पैसे कम होंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं कहीं और से पैसे लेने ज़्यादा जाऊँगा, तो my services will be expensive. Vice versa, if my financial skills are good, so I may be charging less to the patient and I am making more from my portfolio. So financial skills are needed. Obviously, negotiation and communication skills are sine qua non, very essential. अभी एक मैं मशीन खरीदूंगा
और वो मशीन अगर मैं नेगोशिएशन से 30 lakhs की खरीद सकता था एंड विदाउट नेगोशिएशन अगर मैं मशीन वो 70 lakhs की खरीद रहा था, तो आप देखिए कि पेशेंट के लिए वो कॉस्ट कितनी बढ़ रही थी. सो all these business skills are not the part of the curriculum of medical profession. So these skills must be equipped, and I am working very hard to impart those skills to the healthcare professionals. Yeah, that's true. But I want to know there must be some challenges that you're facing that you mentioned, like law आ जाता है, penal code आ जाता है. Those things are right. But there must be some challenges, right? You face when you apply these skills or you're implementing these business skills to your profession. First of all, the challenge is that doctors are not thought of doing business, है ना. दे आर गिवन स्टेटस ऑफ सेमी गॉड, भगवान का रूप कह दिया जाता है उनको. अब भगवान का रूप तो आपने कह दिया, लेकिन उसके भी बच्चों को पढ़ाना होता है, तो उसको भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, उसको भी बिजनेस की ज़रूरत होती है. तो पहले तो एक जो सोसाइटी एज अ डॉक्टर को देखती है, तो वो कहती है अरे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप बिजनेस का नाम कैसे ले सकते हैं. तो एक तो पहले ये टैबू से बाहर आना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर भी आपकी तरह ही एक इंसान है, डॉक्टर की अपनी नीड्स हैं. व्हाट माय एम्फेसिस इज ऑन एथिकल बिजनेस, इज ऑन द लीगल बिजनेस. सो वन मस्ट अर्न द मनी बाय द ऑनेस्टी, बाय द एथिक्स. मनी अर्न करने में और बिजनेस स्किल्स को इम्पार्ट करने में इस तरह के चैलेंजेस बहुत आते हैं. इवन जब मैं कोर्स भी लॉन्च करता था, उन्होंने कहा बिजनेस स्किल्स फॉर डॉक्टर्स, बट डॉक्टर्स के लिए बिजनेस स्किल क्यों चाहिए, है ना. डॉक्टर्स बिजनेसमैन थोड़ी होता है. तो यस, डॉक्टर बिजनेसमैन नहीं होता है. इट इज़ अबाउट द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ दैट वेंचर. आप जैसे मेरे क्लिनिक पर आते हैं, अभी अगर ये अगर प्रोफेशनली बिजनेस मैनेज्ड नहीं है, अगर मेरे पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं लॉस को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी एज अ पेशेंट टू गेट दो सर्विसेज स्ट्रीमलाइन. तो बिजनेस स्किल का मतलब ये है कि हाउ टू रन दैट वेंचर efficiently so that it is profitable also, it is cost effective and economical to the patient also. तो इस तरह के challenges आते रहते हैं, रोज़ नए नए laws आते रहते हैं, रोज़ नई नई कैपिंग्स आती रहती हैं. तो अगर डॉक्टर्स को उन चीज़ों की समझ नहीं होगी, how they will be able to survive into this real world. I want to know that how health professionals can manage their professional life while taking care of a patient and having a financial knowledge of running their business or you can say healthcare. फाइनेंस इज द बेसिक थिंग टू हैपन ना. हम जब दीपावली आती है तो लक्ष्मी माँ की पूजा भी करते हैं. हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी माँ को देवी का दर्जा दिया गया है, डेइटी मानते हैं उनको. और अगर हम लक्ष्मी माँ की आरती भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है कि अगर लक्ष्मी माँ की कृपा हो जाए तो मन नहीं घबराता, सब संभव हो जाता, यश पाता. मतलब बहुत सारी पॉजिटिव कोनोटेशंस हैं जो मनी से रिलेटेड हैं. तो फाइनेंस को मैनेज करना इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पैसा अर्न करना एक बात है और पैसे को मैनेज करना अलग बात है. एंड मनी सेव्ड इज मनी अर्न. तो फाइनेंस को मैनेज करने के लिए डॉक्टर शुड बी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड बी वेल अवेयर ऑफ देयर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि उनका इक्विटी डेट रेशियो क्या होना चाहिए. जब आपका सीए आपके साथ बैठते हैं तो वो आपसे बातें करते हैं कि सर इस बार आपका P&L हमने ये बनाया है, हमने इस बार का आपका टैक्स इतना कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन इतना कर रहे हैं. बिलीव मी 80% डॉक्टर्स को ये सारे टर्म्स ही नहीं पता होते. तो वो हाँ 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 बोलते रहते हैं और दे साइन वॉट एवर द पर्सन इज प्रपोजिंग. सो आई वॉन्ट टू गिव दैट फाइनेंशियल विजडम टू द डॉक्टर. अभी एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ. एक टर्म इंश्योरेंस खरीद रहा था मैं. जब टर्म इंश्योरेंस आई वॉज बाइंग फॉर वन ऑफ माई रिलेटिव, तो उसने मुझे दो प्रपोजल दिए. एक प्रपोजल था कि आप जो है इसको पे करिए 1,80,000 रुपीज़ 12 साल के लिए, राइट. और दूसरा प्रपोजल था कि आने वाले 59 ईयर्स तक, मतलब टिल द टाइम द पर्सन रीचेज द एज ऑफ 85, तो अभी 59 ईयर्स उसके में बाकी थे, तो हर साल 70,000 पे करिए. तो
जो मेरा फाइनेंशियल एडवाइज़र था उन्होंने बोला कि सर इसमें आप 1,80,000 12 साल दे दो तो ज़्यादा अच्छा प्रपोजल है, 20 लाख रुपए में 21 लाख रुपए में आप निपट गए। अगर आप 60 साल 59 साल तक आप 70,000 दोगे तो मोर देन डबल आप पे कर रहे होगे, और इसमें 12 साल दे के छुट्टी हो गई। तो सुनने में भी अच्छा यही लग रहा है कि भाई 12 साल दो और छुट्टी हो जाए। लेकिन जब मैंने उसको प्लॉट किया एक्सेल पर, तो 57 लाख रुपीज़ यू आर पेइंग मोर अगर आप 12 साल में आप पे कर रहे हैं, बिकॉज आपने उसके अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR नहीं डाला, आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी नहीं डाली। तो ये सारे कंसेप्ट ही नहीं पता हमको, हमें एक्सेल चलाना नहीं आता, हमें ये सारे कंसेप्ट नहीं पता, हमको कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फार्मूलाज नहीं पता। तो माई रोल इज़, क्योंकि देखिए एक्सेल ही अपने आप में पूरी एक साइंस है, फाइनेंस अपने आप में एक पूरी एक साइंस है, तो हम डॉक्टर्स की, हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के काम की जितनी है, ये मेरा रोल रहेगा। बिकॉज मैंने IIM से MBA करा हुआ है, तो मैं आपको वहाँ से वो नॉलेज निकाल के दे दूंगा जितनी आपके काम की है। आपका काम बढ़िया चल जाए, आप अपने पोर्टफोलियो से बेहतर रिटर्न बना सकें, आप अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सकें, आप जब लोन लें, आप जब इंश्योरेंस खरीदें, तो आपको पता हो कि व्हाट यू शुड बाई एंड वेयर यू शुड से नो। So these will be of great help to the healthcare professionals. Okay. So, like while bringing pride to our country, I want to ask you, how do you manage your focus on your personal life and with your patients? ये तो अच्छा क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली देखिए जब आप बहुत सारी जगहों पर इंगेज होते हैं तो थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आते ही हैं। तो पर्सनल लाइफ तो ऑब्वियसली घर जाकर हो जाती है, और रोज़ घर पहुंचते ही हैं तो मैनेजमेंट हो ही जाता है वहाँ से। एंड यहाँ पर भी डेलीगेशन इज़ द की, है ना। आपको अपने बिजनेस में आप जैसे जैसे आगे जाते हैं, यू हैव टू वर्क विद द लाइक माइंडेड पीपल। आपको उनको स्किल्स के लिए ट्रेन करना पड़ता है, आपको उनको सिखाना पड़ता है, आपको अपना विजन मिशन उनसे शेयर करना पड़ता है, और उस वर्क को ट्रस्ट के साथ में डेलीगेट करना पड़ता है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास जो टीम है, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट विद लॉट ऑफ विजडम, दे आर ट्रस्टवर्दी, और मैं उनको अपना एक सब्सटेंशियल पोर्शन डेलीगेट कर पाता हूँ, सो दैट आई कैन वर्क मोर with my family, I can work more for my creativity, I can put more ventures because I am free from what I am doing right now. तो जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, कि एक टैबू सा है लोगों की मेंटालिटी में, जब भी अपन बिजनेस को और हेल्थ केयर को साथ में एसोसिएट कर देते हैं, एक रेबल सा आ जाता है माइंड में। तो लाइक व्हाट इज योर लाइक पॉइंट ऑफ व्यू? मैंने जैसे अभी बताया कि आप सही कह रहे हैं, है ना। अरे यार ये डॉक्टर साहब थोड़े ही हैं, तो धंधा करते हैं टाइप। अब धंधा करते हैं मतलब क्या भाई, बिजनेस। यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रिस्पेक्ट बिजनेसमैन, है ना। क्योंकि कंट्री तभी चलती है जब उसमें आप नौकरी करने कहाँ जाओगे अगर बिजनेस नहीं है तो। किसी को तो बिजनेस करना पड़ेगा अगर किसी को नौकरी करनी है। सभी लोग नौकरी करने लग जाएंगे तो नौकरी करेंगे कहाँ पर? तो somebody has to run the business, somebody has to take the lead of the entrepreneur. So first ये इंडियन और एशियन कंट्रीज में ही ये बड़ा टैबू है बिजनेसमैन का। अरे भाई तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं तो कुछ खराब थोड़ी करते हैं। तो पहले तो उस बिजनेसमैन की इमेज से अपन बाहर आते हैं। तो businessman is the respectable person. What I am talking is the business should be legal, business should be ethical, business should add value to the society, right? I am not talking about illegal businesses, I am talking about legal businesses. अब आते हैं मेडिकल बिजनेस के बारे में। तो आप किस जगह जाना चाहेंगे एज अ पेशेंट? ऐसी जगह जाना चाहेंगे जो जगह पर कोई ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं होगा, वो जगह हे वायर होगी, उस जगह की टीम डिसिप्लिन नहीं होगी, उस जगह की कोई प्राइस लिस्ट नहीं होगी, आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे? या ऐसी जगह जाना चाहेंगे जो जगह सिस्टमैटिक होगी, जहाँ का ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली मैनेज होगा, जहाँ की एक फिक्स प्राइस लिस्ट होगी और आपको टाइम पे सर्विस मिलेगी? सो बिजनेस स्किल्स में हम यही तो बताते हैं कि जो लॉ हैं वो फॉलो कर लीजिए, अपने एंटरप्राइज को मोस्ट एफिशिएंट वे में मैनेज करना ही बिजनेस स्किल है, सो दैट you can add value to the patient life, you can add value to your employees life, you can add value to the organization, and last but not the least to yourself life. So it is the combination, it is the 360 degree जिससे कि जो है, क्योंकि
अच्छे बिजनेस होंगे तभी गवर्नमेंट के पास टैक्स होगा, तभी एम्प्लॉयमेंट होगा और तभी कंट्री ग्रो करेगी। सही बोला आपने, जैसा कि एक टैबू तो तोड़ना ही पड़ेगा और दोनों को साथ में नहीं, अलग अलग चीज करके सोचना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स भी सीखना चाहते हैं बिजनेस, जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं या हेल्थ के स्टूडेंट्स हैं अभी, जो अभी ज़्यादा अपनी स्टेज पर पहुंचे नहीं हैं। आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो इस बारे में और सीखें, बिजनेस स्किल्स के बारे में हेल्थ केयर के अंदर और सीखें? व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव? Obviously, one has to learn to live in this competitive world efficiently. डार्विन्स लॉ भी जिसके बेसिस पर हम एवोल्यूशन की थ्योरी डालते हैं, सो दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिटेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपके पास में स्किल सेट्स कितने हैं, है ना। आप अगर सिर्फ एक कार खरीदने जा रहे हैं, मैं आपसे बोलूँ कि कार कितने की आती है, तो आप क्या जवाब देंगे उसका? आप बोलोगे सर कार कौन सी खरीद रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। कार तो 2 लाख 3 लाख की भी आती है और कार करोड़ की भी आती है। तो जो डिफरेंस है वो फीचर्स का है ना। किसी कार का साइज बड़ा हो गया तो पैसे बड़े हो जाएंगे, पावर विंडो लग गई और हो जाएगा, स्टीयरिंग के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उसी तरह से हम ह्यूमंस, है ना, आप अगर सिर्फ एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप सिर्फ एक नर्सिंग स्टाफ बनने जा रहे हो, आप सिर्फ एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, तो आपकी वर्थ एक्स है। और जैसे जैसे आप स्किल सेट एक्वायर करते चले जाते हैं तो आपकी जो वर्थ है वो 2x 3x 5x 10x 100x तक बढ़ती चली जाती है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डॉक्टर्स में ही देख लें, कुछ डॉक्टर्स हैं जो मंथ की लाख रुपए का अर्निंग करते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मंथ के करोड़ की अर्निंग करते हैं। तो क्या फ़र्क है दोनों में? सबने एक ही जगह से टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करे थे ना। तो आपके अंदर जो आपका एक्यूमेन है, जो स्किल सेट है, दैट डिफरेंशिएट्स यू। तो अभी जो आपका क्वेश्चन था बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि जो लोग अभी हेल्थ केयर में इवॉल्व हो रहे हैं, जो लोग अभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जिन लोगों ने अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, तो स्किल सेट्स पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर ध्यान दें। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है, मे बी 30 स्लाइड्स, you may take 10 hours 7 hours to make that. If you know how to integrate artificial intelligence in making presentation, you will be able to make in 20 minutes 30 minutes. So now your efficiency is increased. Now you can make 5 presentation 10 presentations in a day. आपने अगर कोई केस स्टडी करा है, उस केस स्टडी को ऐसे आप लिखने बैठते हैं, बहुत टाइम जाता है। इफ़ यू कैन इंटीग्रेट एआई इनटू दैट, आप वर्ड को अच्छे से इन्फॉर्म कर सकते हैं कि उस केस स्टडी से क्या फ़ायदा होगा, एंड दैट विल टेक 10 मिनट्स ऑफ योर्स। सो दैट इज़ हाउ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन विल ऑलवेज हेल्प यू, business skills will always help you. So keep on acquiring skills, be focused, and get ready for the competition you are going to face, my healthcare friends. सो अभी आपने जैसे एआई के बारे में भी कहा, सो हाउ डू यू इंटीग्रेट एआई विद मेडिकल? आई रियली वांट टू नो इट। अभी देखिए एआई अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप उस पर 5 साल तक अपनी इंजीनियरिंग बेस कर सकते हैं। अब मेरा पर्पज़ ये था कि जो एआई है वो डॉक्टर्स के जो जो डेली चैलेंजेस हैं उनके काम में कैसे आएगी। Artificial intelligence is what? First of all, we have to understand that it is a pool of culminated information which has been automated by the best of the brains. और एक हमारा रेगुलर बेसिस पर बिलियंस ऑफ पीपल डेटा कलेक्ट होता जा रहा है, उसका विजडम उसके अंदर एक्यूमुलेटेड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ रियल इंटेलिजेंस, इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, it is a lot of it is a very good friend of a human intelligence. So first of all we have to understand this. अब डॉक्टर्स के बड़े काम का है। अब आप सब कुछ तो इतनी मोटी मोटी किताबें याद नहीं रख सकते ना। तो आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स केस आता है, आप अपना विजडम भी लगाइए और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ लीजिए। यू विल बी एबल टू बेटर मैनेज द पेशेंट। आप एआई के साथ में जो अभी लेटेस्ट रिसर्चेज आई हैं, हो सकता है कि आपके पास अभी उनकी एक्सेस नहीं आई हो, लेकिन अगर आपको स्कॉलरली एआई का, जो स्कॉलरली इज द कल्मिनेशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मिलियंस ऑफ रिसर्चेज, तो आपको अगर एआई आता है तो आप उससे जाकर इंफॉर्मेशन 2 मिनट में लेकर आ सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर केस। अदरवाइज आप बैठकर इतने जर्नल्स पढ़ेंगे तो कितना समय लगेगा और शायद वो पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिले।
फिर आपको जैसे सोशल मीडिया पे जाना है, अब आप अगर अपनी पोस्ट बनाने बैठेंगे, जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखना तो पड़ेगा डॉक्टर साहब, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब उस दिखने के लिए आपको एक पोस्ट बनाने में अगर आपको आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है, तो देयर आर AI टूल्स जिससे कि आप 5 मिनट में 50 पोस्ट बना सकते हो। तो यू आर विजिबल ऑल्सो एंड यू आर एबल टू फोकस ऑन योर टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो, बिकॉज नाउ यू हैव टाइम। इसके अलावा आपको ई बुक्स लिखनी है, आपको थीसिस लिखनी है, आपको रिसर्चेज लिखनी है, आपको नए मॉलिक्यूल्स सर्च करने हैं, आपको अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट करना है, आपको कुछ ऐसा स्पीच देना है जो कि परसुएट कर सके किसी को टू ऑप्ट बेस्ट ऑफ द थेरेपीज। तो इन सब में आप AI की हेल्प ले सकते हैं, और दीज स्किल्स विल टेक यू very far from the persons who are not versed with the AI skill. So इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will not replace humans, but humans who have learned artificial intelligence will definitely replace the persons who have not learned that. So be sure of that. Thank you so much, sir, for guiding us. I really learned a lot about medical field and business skills. I really hope our audience also get a knowledge from us. Thank you.